गोइंग टू डू माई ओन मेकअप. मैं खुद का मेकअप करने वाली हूँ. एंड आई थॉट कि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे खुद का मेकअप करती हूँ एवरी डे के लिए. ये इनफॉर्मल मीटिंग है. And I thought maybe give you a glimpse of how I do my own face and what I look for, and I hope you enjoy it and learn something from it as well. So I take the moisturizer, a little bit of it, and I really like the skin to be nicely moisturized because then, you know, even the makeup blends very well on the skin. Always upward strokes for your face. Okay, so I've moisturized, and don't forget to do your hands as well. Now, what I'm going to do is I'm going to prep my under eye with a special prep. There are a lot of products on the market. You can choose any you like. You have to test it first, always, for allergies. And after you are sure that this product is good for your skin, you get it. So under eye, so that it takes care of the puffiness, or if you haven't slept very well the previous night, or if you're just a little bloated, you know, it just takes care of all that. So I'm going to just tap it on a little bit, just little tiny spots, tiny bits. Okay, so I'll just wait for 2 minutes, and first I'm going to start with the base. The base first with the under eyes and then the whole base. Less is more. हमेशा याद रखना कि जितना कम मेकअप यूज़ करेंगे उतना फेस ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप पता नहीं कितना मेकअप लगा के आए हैं. सो यूज़ वेरी लिटिल, क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही ज़्यादा लगा लिया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट्स बेटर टू ऐड स्लोली देन टू ट्राइंग टू सबट्रैक्ट समथिंग दैट यू ऑलरेडी पुट ऑन योर फेस. सो लेट मी स्टार्ट. आई यूज़ a nice concealer which is more of a liquid, and you know, I usually keep this kind of a palette with me so that I don't directly touch stuff on my face. I use it indirectly. Also, it gives you an idea of how much makeup you're putting on your face. So now I go from the inside to the outside. So first I'll just kind of tap it on. Now notice I put a little bit extra on the inside, so I'm going to make sure that I remove any extra makeup from, and then I'm going to blend it. So what you're trying to do is basically take care of the discoloration under your. Some people have very dark circles. Luckily I don't have like a dark pigmentation under my eye. It's just that it's an under eye. So you just use a concealer for that and make sure you blend it, and don't put too much because it's just for day, it's for every day, and you don't want to look all made up, too made up. It's like putting makeup to make it a non-makeup look. I know it's oxymoron, but that's what it is. तो आप इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले. जितना कम यूज़ करेंगे आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं, और पहले ही अगर आपने ज़्यादा लगा लिया तो उसे निकालना लाइक आई सेड बहुत मुश्किल हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर कि आपके चेहरे के दोनों साइड हमेशा सेम नहीं होते, एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए मेकअप कहते हैं उसे. यू मेकअप फॉर जो छोटे से आपके डिफरेंसेस है, उसे मेकअप करने के लिए आप मेकअप यूज़ करते हैं. सो लोगों को लगता है कि जो फिल्म लोग हैं वो सिर्फ मेकअप की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं. स्क्रीन पे थोड़ा मेकअप लगता है क्योंकि इतने सारे लाइट्स होते हैं, और यू नो इट कैन ब्लीच आउट योर स्किन. द लाइट्स ऐसे लगता है ब्लैंड हो जाता है फेस, क्योंकि सब फीचर्स डिसअपियर हो जाते हैं. इसीलिए व्हेन यू आर वर्किंग इन मूवीज़ एंड ऑल, या आप कैमरा पे हैं तो मेकअप लगाना पड़ता है टू एनहांस योर फीचर्स. तो ये हो गया अंडर आई. थोड़ा सा बिल्डअप करूँगी मैं फॉर माई लेफ्ट आई. ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे ब्लेंड करते हैं उसे, क्योंकि अगर ऐसा एक एक हिस्सा दिखाई दे अगर मेकअप का किया हुआ तो बहुत ख़राब लगेगा. तो एक ऐसे एकदम स्मूथनेस आनी चाहिए मेकअप को, जो मैं ट्राई करूँगी. देखिए, ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप जब ब्लेंड करते हैं ऐसे अलग हिस्से नहीं लगने चाहिए मेकअप के. ओके, तो ये हो गया अंडर आई, हो गया मेरा. अब मैं अपना बेस करूँगी. फिर से एक पैलेट पे थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स या 2 पम्प्स कह सकते हैं आप वो, क्योंकि जितना कम यूज़ करेंगे उतना बेटर है.
और पहले मैं डॉट कर दूंगी ऑल ओवर द फेस, थोड़ा थोड़ा, फिर इसे ब्लेंड करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, क्योंकि मेकअप हमेशा स्मूथ लगना चाहिए, पैची नहीं लगना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड करें। एंड आई यूजुअली यूज सर्कुलर स्ट्रोक्स क्योंकि दैट्स गुड फॉर योर स्किन। और जब भी आप फेस को बेस लगाएं तो डोंट फॉरगेट योर नेक। तो ये हो गया। नाउ द बेस इज रेडी। आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ powder to settle the makeup in. It's a translucent powder. लगती है white लेकिन it's not white. When it goes on your skin, it just puts the makeup in place. बस याद रखना कि आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पाउडर, नहीं तो फेस ड्राई लगने लगेगा जल्दी। तो जस्ट इनफ कि आपका मेकअप सेटल हो सके। तो ये फुल फेस पे लगा लिया। नेक पे, ठीक है, ये हो गया हमारा पाउडर। नाउ मूविंग ऑन टू द आईब्राउज। आईब्राउज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट डिफाइंस द शेप ऑफ योर फेस। मुझे थोड़े थिकनेस आईब्राउज में अच्छे लगते हैं, तो आई एम गोइंग टू डू माय आईब्राउज। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दम दम, तूने क्या समझा है मुझे दम। तो पहले क्या करना है आपको, जस्ट ब्रश योर आईब्राउज ताकि आपका जो नेचुरल शेप है वो दिखने लगता है। देन यू स्टार्ट पुटिंग। जितना यू शुड ऑलवेज बिल्ड अप। सामने से सो आई एम बेसिकली, मैं जो नेचुरल शेप है उस पर बिल्ड कर रही हूँ। सो द आईब्रोज आर डन। अब हम शुरू करेंगे आई शेडो। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एंड वेरी ओपन आईज काइंड ऑफ अ लुक। तो मैंने ये शेड यूज करके अपने आईज के लिए क्रीज क्रिएट किए हैं। आई हैव क्रिएटेड द क्रीज फॉर माई आईज। ओके, नेक्स्ट now I'm going to do my eyeliner. उसके लिए I'm going to use a brown color. Again, less is more. Always remember that. So I'm going to hold my eye a little bit. There. It's very close to my eyelash line, not eyeline. Smudging. तो जहाँ पे आपने वो लाइनर लगाया है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको स्मज कर दीजिए टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। तो अगर आप एक लाइन ऐसा रखेंगे तो लाइन की तरह दिखेगी, लेकिन आप उसको अगर स्मज कर देते हैं तो आपकी लैश लाइन एनहांस होती है और ऐसा लगता नहीं आपने बहुत मेकअप किया हुआ है। सो जस्ट गो ओवर दैट, देयर, स्मज। नाउ दैट द आईलाइनर इज डन, हम लोग अभी अंडर द आई करेंगे। जितना क्लोज आप रख सके लोअर लिड को। Now see the difference. Now we go to the other eye. और वहाँ पे भी सेम। तो ज़्यादा डार्क भी नहीं, so that it doesn't look too prominent. अब जब हमारा आई शेडो हो गया, आई लाइनर हो गया, आँख के नीचे वाला लाइनर भी हो गया, आई एम गोइंग टू पुट मस्कारा। तो मस्कारा पहनने से पहले आप हमेशा अपने आई लैश को कर्ल करना, ओके, और बहुत केयरफुली करना क्योंकि यू नो दिस कैन बी डेंजरस। तो बहुत यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर व्हेन यू आर डूइंग दिस। तो
go close to the lash line and just curl. कर्ल हो गए. बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, मॉडरेट प्रेशर से. Be very 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 careful while using this. Okay, ये हो गया. अब I am going to put some mascara as soon as I find it. Here it is. इसके लिए मैंने मिरर छोटा लिया है क्योंकि इट्स वेरी फाइन वर्क और आँख के इतने पास है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. There you go. Now I'm applying my mascara. So mascara लगाते वक्त हमेशा upward stroke में, from base to up, base to up. और केयरफुल रहना कि क्लम्पी नहीं लगे. आई लैशेज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. अब बारी है ब्लश की, बिकॉज यू वांट टू लुक नाइस एंड रोजी. अगेन लेस इज मोर, तो थोड़ा थोड़ा आई एम टेकिंग दीज टू शेड्स बिकॉज दीज आर लाइटर वंस. जस्ट मेक श्योर यू डस्ट द ब्रश. स्माइल and then apply on your cheek, apples of the cheek, and the other side. You want the color to be seen, लेकिन बहुत natural लगना चाहिए. And I think that is enough for me. That's all for the blush. अब बारी है लिपस्टिक की, तो मैं यूज़ करूँगी ये जो मेरा फेवरेट कलर है. It's on the pinker side and very close to my own lip tone. तो आपकी जो नेचुरल लिप लाइन है उसे फॉलो करें. दूसरे साइड टिल्ट योर हेड अदर वे. बॉटम लिप वेरी लाइटली, क्योंकि डे है एंड यू डोंट वांट टू लुक टू ओवरली डन. फॉलो योर लिप लाइन. यही वो, आप चाहे तो सेम कलर लिप में फिल कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ब्लेंडिंग अच्छा हो. That's done. बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाई है ऐसा. I don't want to give that feel. That's it. Just dab it. Always check your teeth for lipstick. तो हमेशा बात करके थोड़ा सा exaggerated movement of the lips and check your teeth. There should be no lipstick. My look is complete.